السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ حاضر ہیں جی نئے ناول کے ساتھ دل سلطان، نشا رحمان، قسط نمبر 1۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہر انسان کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر سوچتا ہے کہ اس کا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، کون ہے جسے اس کی ضرورت ہے، اسے آخر کیوں پیدا کیا گیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی اور ہر مسئلے کا حل بھی دیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس کا کیا مقصد ہے۔ جیو یہ سوچ کر نہیں کہ تمہارا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، بلکہ یہ سوچ کر کہ تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں یہ زندگی ملی ہے۔ اپنے دل میں نفرتیں نہ پیدا کرو، کیونکہ جہاں نفرت ہوتی ہے وہاں محبت کبھی بھی گھر نہیں کر سکتی۔ یہ کہانی ایک بن مقصد جینے والی یتیم لڑکی اور اس کے دیے گئے مقصد کی خاطر جینے والے ایک لڑکے کی ہے۔ ان دونوں کے راستے اور سوچ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، پر عشق، وہ کہتے ہیں نا، عشق ایک ایسے جام کا نام ہے جسے ایک بار اگر پی لیا جائے تو زندگی بھر اس کا نشہ نہیں اترتا۔ اور ایسا ہی عشق یہاں پر بھی ہوا ہے۔ عشق ایک داستان، ایک تڑپ، ایک جنون۔ کمرے میں گہری اندھیرے کا راز تھا۔ ہر طرف ٹوٹی بکھری چیزوں وہاں پر بسنے والے انسان کا احوال بیان کر رہی تھی۔ وہ اپنی قسمت پر ماتم کرتے ایک کونے میں پڑی تھی، آنکھیں بالکل خشک اور چہرے پر کسی بھی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ بیتی یادوں کو سوچ سوچ کر وہ اپنی قسمت پر ماتم مناتی ہوئی ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ گہرے بھورے بال جو کمر سے نیچے آ رہے تھے، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں جن پر گھنی پلکوں کا بسیرا تھا۔ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ ایک وحشت، ایک ٹوٹا وجود لیے وہ کئی گھنٹوں سے ساکت پڑی ہوئی تھی۔ فون کی گھنٹی کی آواز پر چونک گئی۔ ہلو سنم، ہلو، تم سن رہی ہو نا؟ ہلو سنم، پلیز کوئی جواب تو دو۔ تم کیوں اپنے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ فون کی دوسری طرف سے مسلسل آواز آ رہی تھی جسے وہ بنا کچھ بولے سکتے کی حالت میں بس سن رہی تھی۔ سنم، اور لائن کٹ چکی تھی۔ آج موسم بہت دنوں کے بعد اپنے پر پھیلا رہا تھا اور ترکی کی سڑکوں پر آج معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ ہر طرف خوشیاں اور سکون تھا۔ ایک ایسی گلی میں سوگ کا سا سما تھا، کسی کے ٹوٹ کر بکھر جانے کی داستان تھی۔ سنم، میں نے تمہیں کتنی دفعہ فون کیا پر تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پلیز ایسا مت کرو۔ زندگی صرف ایک شخص پر تو ختم نہیں ہوتی، تو اپنے ساتھ کیوں زیادتی کر رہی ہو؟ شفا جو جانے کب سے اسے سمجھانے میں لگی ہوئی تھی۔ میں اپنے ساتھ زیادتی نہیں کر رہی، بلکہ خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایک شخص میری ذات کا تماشا بنا کے میری محبت کو پیروں تلے روند کر چلا گیا اور میں کچھ نہ کر سکی، بس اپنی ذات کا تماشا بنتے دیکھتی رہی۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا شفا، میں کیا کروں؟ بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ ایک خشک چہرہ لیے وہ بکھری ہوئی بس لب ہلاتی ہوئی جواب دے رہی تھی۔ بس کرو سنم، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب ہم اسے نہیں بدل سکتے۔ شفا جو اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ محبت جب دھوکہ دیتی ہے تو سب کچھ چھین لیتی ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد شفا نے بہت ہمت کر کے کہا، سنم، اب آگے کیا کرنا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اب اس بچے کا کیا کرنا ہے؟ ابارشن کرواؤ گی کیا؟ مجھے نہیں پتا، ابھی تم چلی جاؤ، مجھے اکیلا رہنا ہے، پلیز شفا۔ سنم نے بہت سنجیدگی سے کہا تو شفا وہاں سے چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے سر کھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس بچے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ ایک انتہائی زوردار آواز گونجی۔ 5 سال کا ایک معصوم جو ایک دیوار سے لگ کر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے کہاں پر لایا گیا۔ ڈرتا سہمتا وہ معصوم جب رحیم شاہ کے قریب آیا تو رحیم شاہ نے پوچھا، بھوک لگی ہے؟ کیا کھاؤ گے؟ انکل، میرے باپ کہاں ہیں؟ وہ مر گئے، رحیم شاہ نے انتہائی ظالمانہ انداز میں کہا۔ انکل، میں نے دیکھا تھا انہیں مار دیا گیا، میں نے دیکھا تھا بہت سارا خون، وہ ڈرتا سہمتا روتا ہوا بتا رہا تھا، جبکہ رحیم شاہ اسے کسی اور ہی رخ سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک زوردار آواز گونجی، عیسیٰ، اسے لے جاؤ اور کھانا کھلا کر میرے کمرے میں چھوڑ دو۔ جی حکم، کہتا ہوا وہ اس کی انگلی پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ محب، کچھ پتہ چلا؟ نہیں حکم، میں نے اور میرے آدمی نے ہر ٹرین اسٹیشن اور ہر ایئرپورٹ پر چیک کر لیا، اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا ابھی تک۔ مجھے وہ ہر حال میں چاہیے، رحیم شاہ غصے سے دھاڑا، جبکہ پاس کھڑے محب کی جان پہ بنائی۔ اگر وہ نہ ملا تو حکم ہمیں زندہ گاڑ دیں گے، ڈھونڈو ہر قیمت پر۔ دادو میرا بچپن کا دوست اور میرا ساتھی تھا، اس نے چھین لیا۔ وہ اگر آسمان بھی جا کر چپ کروائے تو اسے میں وہاں بھی ڈھونڈ لوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ شاہ غضب کے عالم میں بول رہا تھا کہ وہ کیا سوچتا ہے رحیم شاہ سے دشمنی مول کر زندہ بچ پائے گا؟
ध्यान रखना मुहिब, इस बच्चे को कोई तकलीफ ना हो यहाँ। हाँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। रहीम शाह की सर्द आवाज़ में कहता हुआ वहाँ से चला गया। अगले दिन जब रहीम शाह ने इस बच्चे को अपने पास बुलाया तो इसकी आंखों में कुछ और देखा। अंकल, मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें जिन्होंने मेरी माँ और बाबा का कत्ल किया। मैं मार डालूंगा इन्हें। मासूम बच्चा जो रात डरा और सहमा हुआ था, सीना तान के खड़ा था अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए। शाबाश, मैं यही सुनना चाहता था तुमसे। रहीम शाह ने मुस्कुराते हुए इसकी जानिब देखा। आज से तुम्हारा नाम सुल्तान है। सुल्तान, सुना तुमने? तुम शेर हो, मेरे शेर, और अब शेर बन के दिखाओ। अपने बाबा की तरह बनना होगा तुम्हें। ईसा, रहीम शाह ने मजबूत आवाज़ में हुक्म दिया। जी हुक्म। ईसा, इसे ले जाओ और ऐसा बनाओ कि दुश्मन इसके नाम से थर थर कांप जाए। इसका गजब ज़मीन से लेकर आसमान तक हो। ऐसा बनाओ इसे। जो हुक्म। कि ईसा उसे अपने साथ ले गया। शाहजोक तुर्की की अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बादशाह था, जिसके नाम से ही हर बच्चा हर बुरा वाकिफ था, जिसके नाम से हर कोई डरता था, जो इसके गजब और बेरहमी से जाना जाता था। एक जालिम मसीहा। रहीम शाह के हाथ धोखा देने वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं थी, ये हर कोई जानता था। अब मान भी जाओ ना। देखो प्लीज़, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं किससे करूँगी यहाँ? मेरा तुम्हारे अलावा है ही कौन? प्लीज़ मान जाओ ना। वो कब से इस रूठी हुई छोटी सी प्यारी सी गुड़िया जैसी बच्ची को मना रही थी। तो मेरे लिए कॉटन कैंडी क्यों नहीं लाई? मैं बात नहीं करूँगी। एक मासूम सी आवाज़ ने इसके दिल में घर कर लिया। देखो, मैं लाई थी, पर वो ना रास्ते में एक तुम्हारे जैसी बच्ची रो रही थी। मैंने उसे चुप करवाने के लिए उसे दे दी। बताओ, क्या मैंने ठीक नहीं किया? वो मासूम आवाज़ में बोली। ठीक किया। ये कहते ही वो उसके गले लग गई। अरे ईशा, तुम यहाँ बैठी हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही हूँ। इस उधेड़ उम्र खातून ने इंतहाई नरम लहजे में इसका नाम पुकारा। जी शिफा आंटी, मैं हिना से बातें कर रही थी। मेरे कमरे में और आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहकर शफा से वहाँ से चली गई। ये मंजर तुर्की के ऑर्फन केयर होम फॉर गर्ल्स का था। ईशा जो यहाँ पिछले 19 सालों से रह रही थी। शिफा आंटी इस तरह बुलाने पर एकदम किसी खदशे का एहसास हुआ। क्या अब मैं यहाँ? ये सोचती हुई ख्यालों में उलझी वो शिफा आंटी के कमरे में। जी आंटी, आपने मुझे बुलाया? कमरे के थोड़ा दूर झुककर उसने पूछा। ईशा, कल तुम बाजार जाना, मैंने ये सामान की लिस्ट बनाई है, इसे लेकर आना। वो लिस्ट पकड़ाती हुई उस बात में सर हिलाती, खुदा का शुक्र करती वहाँ से निकल आई। शुक्र है, मैं तो समझी थी कुछ और ही थी, पर बच गई इस बार तो। ये कहते हुए वो अपने और हिना के रूम में आई, जो कि मुश्तरका रूम था, जहाँ वो जो पिछले 19 साल से रह रही थी। पर उसे नहीं पता था कि शायद ये दिन आज का इसका शायद आखिरी हो। एक छोटा सा कमरा जिसमें वो 2 बेड थे और एक स्टडी टेबल, एक कुर्सी के अलावा कमरे में एक अलमारी थी जिसमें कुछ ज़रूरत का सामान था। ये कमरा इसका खुला सा था, जिसमें वो अपनी सबसे प्यारी और इकलौती छोटी सी बच्ची के साथ रहती थी, जो इसी की तरह ही यतीम थी। कुछ देर बाद हिना रूम में आई तो वो स्टडी टेबल के करीब बैठी लिस्ट को पढ़ रही थी। लंबे घने भूरे बाल जो कमर से नीचे तक आ रहे थे, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें जिन पर घनी पलकों का बसेरा था, साफ निखरी रंगत जो कि किसी गुलाब के खुलने का अंदेशा दे रही थी। इसकी खूबसूरती देखकर अक्सर शिफा सोचती थी कि ऐसी खूबसूरत बच्ची के नसीब में 19 साल तक कोई भी नहीं आया, ना कोई फैमिली और ना ही कोई खुशी इसके परी पर तरस आता था, जिसके माँ बाप इसे पैदा होते ही छोड़कर चले गए थे। इस बदनसीब की ज़िंदगी में सवाए अकेलेपन के और कुछ नहीं था। इसे ऐसे ही देखकर हिना ने उसके पीछे से आके उसे गले लगा लिया। यहाँ बैठी हो, मैं ढूंढ रही थी तुम्हें। इस मासूम बच्ची पर ईशा को बहुत ज़्यादा प्यार आता था। इसकी मासूमियत और बातों पर इसका दिल अक्सर लगा रहता था। हाँ गुड़िया, मैं ये सामान की लिस्ट देख रही थी। तो तुम फिर बाजार जा रही हो ना? तो इस दफ़ा मेरे लिए कॉटन कैंडी लाओगी ना? उसके इस तरह पूछने पर वो मना ना कर सकी। हाँ, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, अब तुम जाओ और सो जाओ। ओके कहते हुए वो प्यारी सी हिना अपने बेड पर लेट गई, जबकि ईशा सोचने लगी कि कॉटन कैंडी के पैसे मैं कहाँ से लूँ। ये सोचते ही उसने अपना लैपटॉप करना और अपना ऑनलाइन थोड़ा बहुत चलने वाले काम को देखा, जहाँ अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। वो ऑनलाइन आर्टिकल लिखने का काम करती थी, जिससे उससे खर्च के पैसे मिलते थे। वैसे तो ये रूल था कि 16 की उम्र के बाद हर लड़की को अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी पड़ती थी, पर ईशा शिफा के लिए बहुत अहमियत रखती थी। उसके लिए 19 के होने के बाद भी वो यहाँ थी। तुर्की की गलियों में शाम का वक्त था। हर तरफ लोग अपनी अपनी ज़रूरत के लिए फिर रहे थे। हर तरफ रशों का बसेरा था। वहाँ पर चहल पहल बहुत ज़्यादा थी। एक लंबा चौड़ा शख्स जो अपने आप को एक ब्लैक हुडी लॉन्ग काले रंग के कोट में कवर किए हुए था, हाथों पर काले रंग के दस्ताने इस बात का सबूत दे रहे थे कि यहाँ शख्स किसी की जान लेने आया था।
وہ چلتا ہوا ایک تاریک گلی میں آیا جہاں پر اندھیرا تھا، جب اچانک اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ مڑ کر دیکھنے پر ایک لڑکی نوجوان میں کھڑی تھی، بہت بیہودہ لباس زیب تین کیے ہوئے۔ کہاں جا رہے ہو ہینڈسم؟ تھوڑی دیر رک جاؤ نا میرے پاس۔ ایک نشے میں مدہوش آواز نے اس کے غصے میں تیل ڈالنے کا کام دیا تھا۔ وہ جیسے لڑکیوں سے نفرت تھی جنہیں دیکھتے اس کا خون کھول اٹھتا تھا۔ اسی بیہودہ آواز کو سننے کے بعد ایک پل بھی رکنے کی بجائے گلے سے پکڑ کر اس لڑکی کو ہوا میں اٹھا لیا۔ جیسے جیسے اس کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی، اس لڑکی کی آواز مدھم ہو رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو پلیز۔ گلے سے رندھی ہوئی آواز وہ لڑکی پہ مشکل نکال پا رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ یہ آواز سن کر جیسے شخص کو سکون مل رہا تھا۔ چلاؤ، اور زور سے چلاؤ۔ ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ یہاں کوئی نہیں جو تمہیں سلطان سے بچا سکے۔ چلاؤ۔ وہ غصے اور غضب میں بول رہا تھا جبکہ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ چھوڑ دو۔ وہ مشکل نکلتی ہوئی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی اور مدھم ہوتے ہوتے ایک دم سے ختم ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے اس لڑکی کے مردہ وجود کو دور پھینکتے ہوئے وہ قریب آیا اور اپنے کوٹ کی جیب سے خوبصورت سی خطرناک خنجر نکال کر پہلے گرے پر پھر ہاتھوں کی نسوں پر بے دردی سے مارنے لگا۔ خون ہر طرف پھیل چکا تھا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ بھی رنگ چکے تھے، پر وہ تھا کہ وار کرنے سے رک ہی نہیں رہا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی مر چکی ہے تو اس کی زبان سے اپنا خنجر صاف کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس تنگ گلی سے نکلتے ہوئے اسے اپنا اصل شکار نظر آ گیا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ وہ بنا آواز کے سامنے کھڑے دو آدمیوں کے قریب آیا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ آدمی اسے پہچان نہ سکے۔ وہ اپنی ہی باتوں میں مصروف شراب کے گھونٹ پہ گھونٹ بھر رہے تھے۔ جب اچانک وہی خنجر نکال کر جب ان کے گلے پر لگا تو دوسرے کو فوراً پتہ چلنے کی وجہ سے وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، پر افسوس کہ دونوں بھاگنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ سلطان سے بچنا کسی کے بس میں نہیں، اس کی لی جانے والی بے رحم موتیں کسی جہنم کی یاد دلاتی تھی۔ اور سلطان میرے شیر، رحیم شاہ نے پرزور آواز میں اس سے پکارا۔ جی آغا جان۔ وہ قریب آ کر سر جھکانے لگا۔ رحیم شاہ نے خوش ہو کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ آغا جان، میں ایک آدمی کو ساتھ لایا ہوں، وہ سب بتائے گا۔ اس کا باپ بھی بتائے گا، رحیم شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ۔ اس کے کندھے کو تھپکی دی اور رحیم شاہ وہاں سے چلا گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر شاور لینے لگا اور اوپر سے خون کے دھبے بھی صاف کرنے لگا۔ روز کی روٹین ہونے کی وجہ سے اب اسے خون سے کوئی چھڑ نہیں ہوتی تھی، بلکہ ظالموں کا خون اسے ایک سکون کا احساس دلاتا تھا۔ آج معمول کے مقابلے میں بہت کم رش تھا اور وہ اپنے لسٹ کے مطابق سامان لے کر بھیڑ میں چلتے ہوئے واپس آ رہی تھی جب گلی کا موڑ مڑتے ہی ایک مضبوط شخص سے ٹکرا گئی اور سب چیزیں زمین پر بکھر گئی۔ اوہ، کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ سڑک پر کوئی ایسے چلتا ہے؟ وہ غصے سے بول رہی تھی جبکہ وہ کالے رنگ کی اسی کوٹ میں ملبوس آنکھوں میں غصہ اور دہشت لیے عشا کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے آگے بڑھ کر اس کا گلا پکڑنا چاہا۔ اس کا ایسے کرنے سے پہلے ہی وہ غصے میں بول پڑی۔ کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اٹھاؤ سب چیزیں۔ کیا اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ کسی لڑکی کی گرائی ہوئی چیزیں اسے اٹھا کر دینی چاہیے؟ اتنا کہہ کر عشا نے اس کا بازو پکڑ کر نیچے بٹھا دیا۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا، پر سامنے والی لڑکی نے ایک دفعہ بھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا۔ وہ چپ چاپ اس کی گری ہوئی چیزیں اٹھا کر ایک تھیلے میں ڈال رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے منہ اٹھا کے، اور سڑک پر تو بالکل ہی اندھے ہو کر چلتے ہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ اپنی چیزیں اٹھانے کے بعد وہ اٹھی اور اس کے ہاتھ سے چیزیں لیتی ہوئی اپنی پونی ٹیل کو گھما کر پیچھے کرتی ایک سائڈ سے نکل گئی، اور وہ جو حیرانی کے عالم میں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا ایک دم سے اپنی سرخ آنکھیں لیے اس کے پیچھے پیچھے قدم بڑھانے لگا۔ آخر سلطان سے پنگا لینے کے بعد وہ کیسے بچ سکتی تھی؟ وہ جو اپنی دنیا میں مست ہو کر اپنی پونی ٹیل میں بندھے لمبے بالوں کو گھومتی ہوئی اپنی چیزیں سنبھالتی جا رہی تھی، اچانک اس کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ ایک گلی سے دوسری گلی میں ڈھونڈنے کے بعد وہ اسے ایک بوڑھے آدمی کے پاس کھڑی نظر آئی۔ تھوڑا قریب جانے پر آواز سنائی دینے لگی۔ انکل، اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے تو میری یہ شال لے لیں، میرے پاس اس کے علاوہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک سردی سے کپ کپاتے ہوئے بوڑھے آدمی کو اپنی شال دے رہی تھی۔ جیتی رہو بچی، اللہ پاک تمہیں بہت ساری خوشیاں دے۔ بوڑھے آدمی نے تہہ دل سے اس کا شکریہ ادا کرا۔ کوئی بات نہیں انکل، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کا پیچھا کرتے کرتے اچانک قریب آنے پر اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے وہ خوبصورت خنجر نکالا اور اپنے قدم تیز کر لیے۔ اتنے میں ایک گھر کے پاس آ کر وہ زن سے گھن کے اندر چلی گئی۔ شاید اس کی خوش نصیبی تھی جو آج وہ سلطان سے پنگا لینے کے بعد بچ نکلی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے اس کی نظر ہینا پر پڑی جو کہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آگے تم کتنی دیر لگا دی؟ میری کینڈی لائی ہو؟ اتنے سوال ایک ساتھ معصوم آواز میں سنتے عشا ایک دم مسکرا دی۔ ارے ہاں بابا لائی ہوں نا، وہ بس تھوڑی سی دیر ہو گئی، سوری۔ کوئی بات نہیں، یہ کہتے ہی ہینا نے اس کے ہاتھ سے کاٹن کینڈی لے لی۔
वर्षा और ईशा की गाल पर एक प्यारी सी मोहर ज़ब्त करते हुए मुस्कुराने लगी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक से शिफा ने उसे अंदर आने को कहा। हाँ, ले आई सब? शिफा ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी आंटी, मैं सब ले आई, कहती हुई वो चीज़ें टेबल पर रखने लगी। ईशा, यहाँ बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी आंटी, कहें। वो कुर्सी घसीट कर पास बैठ गई। ईशा, तुम जानती हो ना कि अब तुम ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रह सकती। मुझे बहुत अफसोस है बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी फैमिली नहीं ढूंढ सकी। शिफा आंटी की आवाज़ में दुख और नदामत है, जिसे ईशा ने एक चुटकी में दूर किया। नहीं आंटी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ना मेरे नसीब में कोई फैमिली लिखी ही नहीं थी। अब आपको तो इसमें कुछ नहीं है ना। अब मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से। इस बेकार की उम्मीदों से पीछा तो छोड़ गया। मैं समझ सकती हूँ बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह या घर में भेज सकूँ, शिफा ने नम आंखों से कहा। तो ईशा ने इंतहाई समझदारी से जवाब दिया। आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब इस काबिल तो हो गई हूँ कि खुद का ख्याल खुद रख सकूँ। मैंने पहले ही एक जगह इंतज़ाम कर लिया है, आप मेरी फ़िक्र ना करें। आप बस इन 2 बच्चों को आने का कह दें, मैं 2 दिन में यहाँ से चली जाऊँगी। ये कहते ईशा की आंखों में आंसुओं की बरसात हो गई, जिसे वो शिफा आंटी से छुपाते अपने चेहरे पर बिना किसी तासुर के वहाँ से जाने लगी। तो शिफा ने रोक कर पूछ दिया, कहाँ जाओगी? आंटी, वो मेरी एक दोस्त है, वो हमेशा से मुझसे कहती है कि मेरे पास आ जाओ, तो मैंने उससे बात की है। आप फ़िक्र ना करें, मैं वहाँ चली जाऊँगी। एक झूठ जो बस इसे मौके पर बोल देना ही ठीक लगा था। कौन दोस्त? तुमने कभी बताया नहीं। शिफा आंटी अब इसकी बात की तस्दीक पर पहुंच गई थी। एक दोस्त है आंटी, वो आप इसे नहीं जानती। कोई होती तो बताती कौन थी, पर इस वक्त ईशा के लिए बस वो छोटी मासूम बच्चियां ज़्यादा अहमियत रखती थी, जो कि घर से बेघर थी, और इसके रूम में इसका 2 से ज़्यादा का हक था। तो इस वक्त वो जो झूठ भी जहन में आया बोलती चली गई। आप फिक्र ना करें आंटी, मैं 2 दिन तक चली जाऊंगी। ठीक है, तुम जहाँ पर भी रहो मुझसे राब्ते में रहना, समझ गई? शिफा को ईशा की हमेशा से ही बहुत फिक्र रहती थी। ये बात ईशा भी अच्छी तरह जानती थी। जी आंटी, ये कहकर वो कमरे से बाहर आ गई। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, शिफा आंटी ने इसे जाते हुए देखकर कहा। बाहर जहाँ काली और रात अंधेरी का पहर था, वहाँ एक खिड़की से लगे हुए शख्स ने सुनकर एक शैतानी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा ली। मेरे लिए तो आसानी हो गई, ये कहता हुआ वहाँ से चला गया। और न जाने कब से वहाँ खड़ा इनकी बातें सुन रहा था। रात का न जाने कौन सा पहर था जब वो अपने बिस्तर पर लेटी खाली आंखों से बस ये सोचने लगी थी कि अब वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी। मेरे पास तो रहने के लिए ना घर, ना कोई जगह है। यहाँ के अलावा मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है, वह ना ही मैं जानने वाला। अब मैं कहाँ जाऊँगी? आंटी से तो झूठ बोल दिया, पर अब आगे? सोचो में उलझते हुए बिस्तर पर करवट बदल गई। सुल्तान के लिए आज की रात बहुत मुश्किल थी। आज पहली बार कोई लड़की उसके मुंह से इस बदतमीजी से कहकर आसानी से चली गई थी, और वो बस उसे देखता रह गया था। ये बात सोचकर इसका दिमाग खोल रहा था। मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा, आखिर बदतमीज जो हूँ। ये कहते सुल्तान की आंखों में सुर्खी नुमायाँ हो गई। अहमद जहांगीर गुस्से से धार रहा था। कहाँ है वो दोनों? जवाब दो। तुम जानते हो ना, दोनों लड़कों के पास हमारे हर काले कारनामे का सबूत है। वैसे कैसे हाथ से निकल सकते हैं? लाला, वो हाथ से निकले बल्कि सुल्तान ने मार डाला है। इस कामती हुई आवाज़ ने अपने साथ बात मुकम्मल करनी चाहिए। फुरकान ने अपनी बात मुकम्मल करके अहमद जहांगीर की जानिब देखा, और एक ज़ोरदार थप्पड़ ने फुरकान को ज़मीन पर गिरने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज वो दोनों रहीम शाह के हाथों लग चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है क्या वो हमें छोड़ देगा? अहमद जहांगीर गुस्से से चिल्ला रहा था। ढूंढो कोई कमज़ोरी, कोई वीक पॉइंट इनका, कुछ भी, जो हाथ लगे उठा लो। वो गुस्से से आग बगोला हो रहा था और तैश के आलम में अपनी कुर्सी को दूर फेंकते हुए अंदर की जानिब चला गया। फुरकान, जो अभी तक ज़मीन पर पड़ा था, उठ के शायान के पास आया और कहने लगा, सुल्तान के होते हुए क्या इनकी कमज़ोरी हमारे हाथ लग सकती है? इन दोनों का पकड़े जाना मतलब अहमद जहांगीर की कब्र तैयार हो रही है। वो कहता हुआ वहाँ से चला गया। शायान, जो कि अभी तक बुत बना खड़ा था, बस सोच रहा था कि अब सुल्तान के हाथों मरने की बारी उसकी है। एक झुरझुरी ली, वो भी वहाँ से रफू चक्कर हो गया। सुबह तय जोर के रोज़ के मामूल के मुताबिक ईशा अपने काम से फारिग होकर शिफा आंटी के कमरे में आई। आंटी, क्या आप फ्री हैं? मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ ईशा, आ जाओ। आंटी, मैं आपसे कुछ बात करने आई थी। हाँ बोलो ईशा, क्या बात है? शिफा आंटी ने नरम लहजे में कहा। आंटी, मैं दरअसल आपसे कहना चाहती हूँ कि क्या हिना के जाने तक मैं यहाँ रुक सकती हूँ? मेरे ऐसे चले जाने से वो बहुत परेशान हो जाएगी। मेरी जान, मैं जानती हूँ तुम हिना को बहुत अच्छा चाहती हो, पर इस सच में मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वो नई आने वाली बच्चियाँ, इनके लिए कमरा खाली करना बहुत ज़रूरी है बेटा। मैं समझ सकती हूँ आंटी। मैं तो बस आंटी,
मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ क्या? ईशा ने मध्यम लहजे में पूछा। हाँ बेटा पूछो, शिफा आंटी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आंटी क्या आप बता सकती हैं मुझे कि मेरे माँ बाप के बारे में? अभी अल्फाज उसके मुंह में ही थे जब शिफा आंटी ने बात काट कर कहा, तुम जानती हो ना ईशा, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। मैं जानती हूँ आंटी, पर अब तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो क्या आप अब मुझे नहीं बताएंगी? मैं जानना चाहती हूँ आंटी। वो इल्तिजा करने के अंदाज में बोली तो शिफा के दिल पर रखा हुआ पत्थर हट गया। कुछ देर खामोशी के बाद शिफा आंटी ने कुछ सोचते हुए इसकी जानिब देखा। तुम जानना चाहती हो ना कि तुम्हारे माँ बाप कौन है? अगर सुनने की हिम्मत रखती हो तो सुनो। सनम, तुम्हारी माँ का नाम सनम था, जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मेरा इसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। इसी की जैसी खूबसूरत आंखें, इसी के जैसे नकूश। मुझे तुम में सनम नज़र आती है। मैं और सनम बहुत साल पहले पाकिस्तान से यहाँ आए थे। तुम्हारी माँ वो बहुत अच्छी लड़की थी। ईशा, सनम और इब्राहिम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। तुम्हारी माँ उसकी मोहब्बत में इतनी आगे निकल गई कि अपने सारे कानून और सारी हदबंदियाँ पार कर ली, लेकिन इब्राहिम के दिल में कुछ और ही था। वो तुम्हारी माँ को सिर्फ खूबसूरती की वजह से चाहता था और उसने सनम की मोहब्बत का गलत फ़ायदा उठाया। अपनी तस्कीन हासिल करने के बाद उसने सनम को कभी मुड़कर भी नहीं देखा और चला गया। तुम्हारी माँ जो इससे सच्ची मोहब्बत करती थी, अपनी ज़ात का तमाशा बनता देख ना पाई। तब मैंने उससे ये ऑर्फनेज खोला। तुम्हारी माँ तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि तुम इसकी सच्ची मोहब्बत की वाहिद गवाह थी। बिना शादी की एक बच्चे की माँ बनना हर किसी की नज़र में बुरा समझा जाता है। तुम्हारी माँ ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकी। शिफा आंटी नम आँखों को बार बार साफ करती। जिस रात तुम इस दुनिया में आई, इस रात तुम्हारी माँ तुम्हें मेरे घर पर डस्टबिन में रख कर चली गई। सुबह जब मैंने दरवाज़ा खोला तो तुम वहाँ पड़ी हुई थी और साथ में एक नोट था। वह तुम्हारी माँ का आखिरी नोट था। शिफा, इस दुनिया में और कोई नहीं जो उसकी हिफाजत कर सके, इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। और मैं जानती हूँ तुम इसका ख्याल रखोगी। आज मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। इस नोट में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लिखा था। उस दिन के बाद तुम्हारा यहाँ मेरे पास। वो जो सामने बैठे चेहरे पर बिना कोई तासुर लिए कहानी सुन रही थी, इससे आगे सुनने की हिम्मत न कर पाई और एकदम से उठकर बाहर चली गई। शिफा उसे जाते हुए देख रही थी। वो जानती थी कि यह तल्ख हकीकत सुनने के बाद उसकी क्या हालत होगी। वह सीढ़ियों पर बिना किसी हिस्सो हरकत के बैठे एक बेजान सा जिस्म लिए अपनी ज़िंदगी की हकीकत को कबूल करने की कोशिश कर रही थी, पर ज़्यादा देर अपने आंसुओं को रोक ना सकी और फूट फूट कर रोने लगी। क्या बस यही मेरी पहचान? क्या बस यही हूँ मैं, एक नाजायज़? रोते उसके दिमाग की नस फट फट रही थी। अपनी ज़ात की हकीकत सुनकर वो किसी से नज़रें मिलाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अपनी पूरी ज़िंदगी में वो कभी नहीं रोई थी, और आज जिसे वो भरा हुआ दिल आंसू सब निकल रहे थे। एक दर्द की शिद्दत से वो अपने आप को काबू नहीं पा रही थी। उसकी ज़िंदगी की सबसे तल्ख हकीकत जिसे वो अगर ना सुनती तो शायद ठीक था, पर आज वो अपने आप से भी नज़रें नहीं मिला पा रही थी। रोते रोते कब इसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। मौसम खुशगवार होने की वजह से रहीम शाह आज अपने लॉन में बैठा मौसम का मज़ा लेने में मसरूफ़ था, जब अचानक आवाज़ आई, हुक्म। बिना आंखें खोले जवाब दिया। वो काफ़ी दिनों तक कोई नया शिकार हाथ ना आने की वजह से सुल्तान को वही रुकना रह गया था। इसे सहमी हुई आवाज़ से अपनी बात पूरी करने की कोशिश कर रहा था। जानता हूँ मैं इसे, जब तक वो अहमद के जासूसों को मार नहीं देता वापस नहीं आएगा। जानता हूँ मैं अपने शेर को। आवाज़ में एक चमक लिए वो सुल्तान के लिए खुश था। मैं इसे जैसा बनाना चाहता था वो बिल्कुल वैसा बन गया है। मुझे फ़ख्र है इस पर। एक रोज़ ज़ोरदार आवाज़ के इख्तिताम पर रहीम शाह ने ईसा को जाने का इशारा किया और वो पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। आज ऑर्फन केयर में इसका आखिरी दिन था और एक सुनहरी सुबह ने उसकी आंख खोली तो उसने खुद को सीढ़ियों पर सोता पाया। शायद वो रात यहीं पर ही सो गई थी। मुसलसल सोने की वजह से उसका अपना सर बहुत भारी लग रहा था। वो अपना लहराता हुआ वजूद संभालते हुए अपने कमरे में आई तो हिना का परेशान उदास चेहरा देखकर समझ गई कि इसके जाने की खबर इस तक पहुंच गई है। तुम जा रही हो? एक मासूम आवाज़ जिसमें बहुत बहुत दर्द भरा हुआ था ईशा के दिल को दुखी होने पर मजबूर कर दिया। हाँ, और मेरे पास बैठो। एक कुर्सी अपने पास खींचकर वो हिना को अपने पास बिठाकर खुद नीचे बैठ गई। मेरी बात गौर से सुनना हिना, तुम जानती हो ना मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। तुम रूल जानती हो ना। वो तो शिफा आंटी ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे अब तक यहाँ पर रखा हुआ है, पर अब मुझे जाना होगा। मत जाओ ना, मासूम सी आवाज़ ने फिर इसके दिल में खलश डाल दी। मुझे जाना होगा हिना, पर मैं तुमसे मिलने आया करूँगी। सच?
हिना ने थोड़े से खुश पर उदास अंदाज में पूछा। हाँ ना, मैं जहाँ भी रहूँगी तुमसे मिलने ज़रूर आया करूँगी। तब तक तुम बहुत एक अच्छी फैमिली भी मिल जाएगी, और अगर ना मिली तो? आवाज़ में इस दफ़ा दुख था। क्यों नहीं मिलेगी हमारी हिना को? इतनी प्यारी और स्वीट हो तुम। तुम्हें तो देखते अपने साथ ले जाएंगे, देखना। तुमसे ज़्यादा प्यारी तो नहीं हूँ मैं। अब की बार हिना ने खुश होकर जवाब दिया, जिस पर ईशा की मुस्कुराहट नुमाया हुई। चलो मुझसे प्रॉमिस करो, तुम रोगी नहीं। अगर तुम प्रॉमिस करोगी तो मैं तुमसे मिलने आया करूँगी, और अगर नहीं करोगी तो नहीं। हाँ मैं करूँगी, एक मासूम आवाज़ के साथ ईशा ने हिना को ज़ोर से गले लगाया था। आज मार्केट में पहले से ज़्यादा रश था और ईशा अपने लिए ज़रूरत की चीज़ें छीनकर छोटी सी शॉप में आई। एक बैग, एक वाटर बोतल और छोटी छोटी चीज़ें खरीदने लगी। वहाँ से एक दो ज़रूरत की चीज़ें लेकर जब वो पलटी तो एक काले रंग के कोट में मलबूस आदमी से टकरा गई। वो गिरने ही वाली थी कि इस शख्स के मजबूत हाथों ने उसे गिरने से बचा लिया। ईशा ने चेहरा उठाकर उसकी जानिब देखा तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें मजीद फैली। तुम तो वही हो ना, उस दिन भी मुझसे टकरा गए थे? एक सवालिया चेहरा लिया ईशा अब उस आदमी से पूछने लगी जो इस दिन से इसका पीछा करने में लगा हुआ था। उसे देखते ही सुल्तान ने अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट सजाई। बहरहाल ये एक इत्तफाकिया मुलाकात थी, फिर भी सुल्तान को जो चाहती थी वह सामने था। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? ईशा ने गुस्से से पूछा, जिसमें वो मुस्कुराहट मजीद नुमाया हुई और कुछ बिगड़ कर बोले। बस वह सुन रहा था। वो नहीं जानती थी ये शख्स उसके साथ क्या कर सकता है, इसलिए बिना डरे और बिना किसी हिचकिचाहट के पूछ रही थी। तो मेरा पूछे कर रहे हो? वो अपनी उंगली उठाकर उसकी जानिब किए बिना हिचकिचाए कह रही थी। जब पास खड़े लोगों ने इनकी तरफ नजरें जमाई तो ईशा ने वहां से जाने में ही भलाई समझी, इडियट कहकर। सामने से कोई जवाब ना आने पर वो अपनी चीज़ें संभालती वहां से जाने लगी। वो जो कुछ खरीदने के लिए आया था सब भूलकर इसका पीछा करने के लिए जो ही बाहर निकला तो इसे कहीं भी नजर न आई। एक पल में उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई पर वो जा चुकी थी। अफसोस, आज सुल्तान की हार का दूसरा दिन था। पता नहीं कौन सा था जो उसे देख रहा था जिसे खा ही जाएगा। वो ज़हरीला बड़बड़ाती हुई घर के अंदर दाखिल हुई। आज ऑर्फन केयर में आखिरी दिन था और अपनी ज़िंदगी खूबसूरत 19 साल की इस लड़की ने यहाँ गुजारते हंसते खेलते खिलखिलाते पल भर जीने वाली लड़की आज सबको उदास किए जा रही थी। अपना सामान पैक करते हुए जब इसकी नज़र हिना पर पड़ी तो वो बहुत उदास मुंह बनाए उसके लिए खिड़की से खड़ी थी। आंखों में आंसू लिए अपना सामान पैक करते देख रही थी। सामान के नाम पर इसके पास कुछ कपड़े और लैपटॉप था जिन्हें तकरीबन 5 मिनट में पैक करके वो हिना के पास आई। उदास मत हो दोस्त, एक मजबूत सी आवाज़ से कहती हुई हिना को गौर से गले लगाती हुई एक बाहर आ गई जहाँ सब इसे अलविदा कहने के लिए जमा थे। सबको अल्लाह हाफिज़ कहते हुए शिफा आंटी से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। इसमें तो इनका कोई कसूर नहीं था, पर सज़ा तो इसे ही मिल रही थी। आखिरी दफ़ा हिना को देखती वो ऑर्फन केयर से बाहर निकल आई। अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें और अपना बचपन वो सब छोड़कर एक दुनिया में नहीं जा रही थी जहाँ इसका कोई भी मददगार नहीं था। इसे अब जो भी करना था अपने दम पर करना था। सड़क पर चलते चलते वो ये सोच रही थी कि अब वो कहाँ जाएगी। इसका तो कोई दोस्त नहीं और ना ही कोई जानने वाला। चलते चलते थक कर वो वॉक बेंच पर बैठ गई और आंखें बंद करके सोचने लगी, अब क्या करना चाहिए। इतने में एक फ़कीर करीब आकर सदा देने लगा, प्यारी बेटी कुछ खाने के लिए दे दो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। अल्लाह पाक तुम्हें खुशियाँ देंगे। खुशियाँ? ये लफ्ज़ सोचकर उसने कहा, वो शायद मेरी ज़िंदगी से चली गई हैं। पर अपने बैग में हाथ डाला तो एक ब्रेड का टुकड़ा था जो उसने इस फ़कीर को दे दिया। उसे दुआएं देता हुआ वहाँ से चला गया। हल्की हल्की शाम ने अपने पर फैले तो तुर्की की सड़कों पर रोशनियाँ जगमगाने लगी। हर तरफ चहलकदमी होने लगी और वो एक अंधेरी गली में एक बेंच पर बैठ गई। इसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि किसी होटल में कोई रूम रेंट पर ले ले और ना ही खाने के लिए। बेयारो मददगार वो अपने सोचने की सलाहियत खो चुकी थी। किसी तरफ से कोई भी हल इसके जहन में ना आने पर उसने आंखों में आंसू आ गए और बिना आवाज़ के अपने ज़ब्त को तोड़ती हुई वो फूट फूट कर रोती। जबकि ये सारा मंजर गली के अंधेरे कोने में खड़े खुद के काले रंग के हुड और काले रंग की लॉन्ग कोट में कवर किए हुए वो शख्स बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। एकदम से उसकी आंखों में एक दहशत का सा सामान दिखाई देने लगा और अपने कोट की जेब में हाथ डालकर अभी कुछ निकालने ही वाला था कि अचानक 2 आदमी ईशा को दूर से देखकर कुछ बोल रहे थे। यहाँ अकेली क्यों बैठे हो, आओ हमारे साथ चलो। एक 30 साल का आदमी ज़रा आगे बढ़कर बोलने लगा तो डरी सहमी वो लड़की वहाँ से उठकर जाने लगी तो इस आदमी ने उसका बाजू पकड़ लिया। ईशा ने अपने आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की लेकिन इस आदमी की मजबूत गिरफ्त में नाकाम रही और ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, खुदा के लिए कोई तो मदद करो। जो आज तन्हा पहली दफ़ा इस तरह घर से बेयारो मददगार निकली थी वो सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कौन हो तुम लोग, छोड़ दो मुझे खुदा के लिए।
वो मिन्नत कर रही थी और डर की वजह से उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। वो शख्स हाथ में शराब की बोतल पकड़े मदहोश आवाज़ में ईशा से मुखातिब था। उसके मुंह से शराब की बू ईशा को इंतहाई मनहूस लग रही थी और वो मुसलसल अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वो आदमी उसे घसीटते अपने साथ लेके जाने लगा। अचानक एक तरफ से खंजर उड़ता हुआ आया और ईशा का बाजू पकड़ने वाले आदमी के गले में लगा। बाजू अब इस आदमी की गिरफ्त से आज़ाद हो चुका था। दूसरा आदमी जो भागकर अपने साथी की मदद के लिए आया, इसके गले से निकलता खून देखकर डर गया। मुड़ के देखने से पहले सुल्तान ने उसके गले में पकड़कर एक बार फिर मारना शुरू कर दिया। दूसरा आदमी अपने गले से मुसलसल खून निकलने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मर रहा था, जबकि वो इसे भी मौत देने के करीब था। ईशा जो ये सब कुछ देख हैरान होकर देख रही थी, एकदम से चिल्लाई और डर के मारे कांपने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। सुल्तान की आंखों में गहरी सुर्खी, जिसे देखकर किसी भी हालत पतली हो सकती थी, पूरी दहशत से इस आदमी को मारने में लगा हुआ था। एक के बाद एक बार वो अपना कांपता हुआ वजूद हिला भी नहीं सकती थी, मुसलसल बिना आवाज़ के रोई जा रही थी। एक आदमी उसकी आंखों के सामने मर चुका था और जब सुल्तान ने दूसरे आदमी को मारने के लिए अपना खंजर हवा में लहराया तो एक ज़ोरदार चीख से इसका हाथ रुक गया। मत करो ऐसे, प्लीज़ मत मारो, वो डरते हुए कांपती हुई आवाज़ में कह रही थी, जबकि गुस्से की शिद्दत से जब सुल्तान ने ईशा की तरफ देखा तो आंखें देखकर वो मज़ीद डर गई और अपना बेजान हवा मौजूद घसीट कर भागने लगी। भागते हुए वो इतना दूर तक आ गई कि उसे मंजर दिखाई देना बंद हो गया। अपना आप संभालती हुई वो डरी सहमी लड़की आज पहली दफ़ा अपने आप को डर में घिरा हुआ महसूस कर रही थी। वो डरी सहमी सड़क पर तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई जा रही थी जब उससे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। वो अपने मजबूत कदम उठाता हुआ इसके करीब आ रहा था। अचानक ठोकर लगने की वजह से वो ज़मीन पर गिर गई और वो बिल्कुल इसके करीब आकर रुक गया। हिम्मत करके ऊपर देखने पर ईशा की आवाज़ भी ना निकल पाई। कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बमुश्किल निकलती हुई आवाज़ से उसने अपनी बात मुकम्मल की। कौन हो तुम? रुंधी हुई आवाज़ से वो बोल रही थी। उठो, एक मजबूत और भारी आवाज़ गूंजी, पर वो डर के मारे बस ज़मीन पर पड़ी रही। अचानक सुल्तान ने अपने मजबूत हाथों से पकड़कर इसे खड़ा किया। डर के मारे वो कांप रही थी। डरना बंद करो, गुस्से से बोलता वो उसे एकदम साकित कर गया। मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम बिना शुक्रिया अदा किए भाग आई। आपकी वो आवाज़ में गुस्सा थोड़ा कम था। बताना पसंद करोगे कि रात के इस वक्त तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? अब इसकी आवाज़ में गुस्से की बजाय फिक्र थी। वो मैं बात उसकी हलक में ही रह गई थी। बताओ। वह अपने आईब्रो झुकाकर ईशा को बगौर देख रहा था। ईशा सहमी हुई बस उसे देख रही थी। वो फिर से मजबूत आवाज़ में पूछने लगा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस दफ़ा ईशा ने हिम्मत करके कहा, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अब ईशा ने मजबूत आवाज़ में जवाब मांगा। जो मैंने पूछा इसका जवाब दो। आवाज़ में फिर से वही गुस्सा था। वो जो थोड़ी हिम्मत लेकर आई थी फिर से सहम गई। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? ईशा ने बेफिक्र होकर जवाब दिया। मेरा पीछा करना छोड़ दो, जाओ यहाँ से। ये कहते हुए वो आगे बढ़ने लगी, पर सुल्तान की आंखों में फिर से वो सुर्खी देखकर एक कदम भी ना उठा सकी। वो सुर्ख होती आंखें लिए उसे बगौर देख रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद, ठीक है जाओ, फिर दोबारा मदद मांगने मत आना। ये कहकर सुल्तान लंबे लंबे डग भरता वहाँ से चला गया। अजीब आदमी है, बिना मांगे मदद की, और अब कह रहा दोबारा मदद मत। तोबा। वो बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ गई। मैं अपने दोनों बाजू आपस में बांधे बैग कंधों पर डाले डरती हुई इधर उधर सड़क पर तन्हा चल रही थी। वो अक्सर बाहर जाती थी, पर इस तरह नहीं जिस तरह आज। एक पल के लिए तो वो भूल ही गई कि वो कौन सी जगह है। वो यहाँ तो पहले कभी नहीं आई थी। कुछ देर पहले होती कार्रवाई पर वो बहुत डर गई थी। चलते चलते वो एक बेंच पर बैठ गई। वहाँ काफ़ी लोग थे। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो एक शेल्टर में एक बेंच पर लेटी हुई थी। आंखें खोलते हुए उसे भूख महसूस हुई, पर खाने पीने के लिए तो पैसे नहीं है। या अल्लाह, अब तू ही मदद कर, वो कहती हुई उठी और पास लगे हुए वाटर कूलर से हाथ से पानी पीने लगी। काफ़ी देर चलने के बाद कोई जगह ढूंढने में जब वो नाकाम हुई तो एक जगह बैठकर सोचने लगी। अचानक याद आने पर उसने अपने नए लैपटॉप खोला और अपना ऑनलाइन चलने वाला काम देखा, पर अफसोस इस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस बेंच पर बैठे हुए उसे न जाने कितनी देर हो गई थी, पर वह बिना हरकत के बैठी रही। भूख अब सताने लगी थी। दूर एक खाली बेंच पर बैठे हुए इस मजबूर शख्स को अब इस पागल लड़की पर गुस्सा आ रहा था। सिद्धि। वो दिल में बड़बड़ाया, चलो देखते हैं कब तक जिद करोगी। कहता वो आराम से आंखें मूंदे बेंच की पुर्श से टेक लगाए लेट गया। सुल्तान को खुद भी नहीं पता था कि वो यहाँ क्या कर रहा है और आखिर क्यों वो इसकी मदद करने आया। वो क्यों यहाँ बैठा है? शायद वो किसी मजलूम की मदद करने आया, या फिर किसी मुश्किल में फंसे इंसान की मदद के लिए आया, या ये सब बस एक बहाना था। वो बहुत देर तक सोचती रही, पर हल नजर आया और शाम फिर से अपने पैर फैलाने लगी।
शाम को देखकर ईशा फिर से लर्जा तारी हो गया और उसे सब कुछ सोचने के बाद एक हल नजर आया। वो आदमी कौन था? क्या मुझे उसे ढूंढना चाहिए? एकदम उसे ख्याल आया, नहीं, उसे कल रात का सीन याद आया, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। पर इसने मुझे बचाया। एक साथ कई सोचें उसके दिमाग में चल रही थी, पर भूख और डर की वजह से उसे ढूंढने पर मजबूर हो गई। सड़क पर वो यूं ही चल रही थी, शायद किसी को ढूंढ रही थी, और जरा फासले पर कोट की जेबों में हाथ डाले वो आराम से उसे देख रहा था। वो इस तरह से इसका पीछा कर रहा था कि कुछ ईर्ष्या को भी एक पल के लिए महसूस नहीं हुआ कि कोई इसका पीछा कर रहा है। पता चलता भी कैसे? वो शख्स तो इस काम में माहिर था।